हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेम्पल राणा's व्लॉग। हम आज जा रहे हैं दुबई टूर पे फ्रॉम वन ऑफ दी ट्रैवल एजेंट। अभी थोड़ी देर में बताऊंगी किससे हमने बुक किया है। सो आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगेगा। वेलकम बैक टू टेम्पल राणा's व्लॉग। सो आज की जो व्लॉग है इसमें हम जाएंगे दुबई फ्रेम और दुबई टूर, मतलब उसमें बहुत कुछ रहेगा जैसे कि गोल्ड सूक, स्पाइक सूक, हाँ स्पाइस सूक और भी काफ़ी सारा है, तो वो सब हम आपको दिखाएंगे, एक्सप्लोर कराएंगे। On sharing tour, please, we are going to show you the most beautiful tourist attraction. So somewhere we are going for stop for the photo stop. Somewhere we have only you people can see the drive-through also. So now you people can see on right side world biggest frame, which one was opened in 2018, and that is the center of Dubai. The height of the frame 150 meter and width of the frame 93 meter. 230 million dirham is the construction cost of the Dubai frame. The purpose of the frame, once you people will be upstairs on the top of the Dubai frame, you people can see your left side New Dubai view and the right side all Dubai. Inside they are giving information about Dubai past, current and futures through the years, photos, videos and animations. So please note that also, because of if it is anybody wants to go inside, it will take minimum like around 1 hour 20 minutes, because of you have to scan the tickets. Then there is the queue also, because of there is two big elevators. So in one elevator 12 to 14 guests can go upstairs. Then once you people be inside, then you have to see the videos, and then after that you can go for photos. So minimum like 1 hour 20 minutes, and then again you have to take same process through elevators. So the ticket price is 55 dirham, which one you people can book online through our companies also and on the counter also. So please, today I am going to share with you our itinerary. Sir, you know English? Okay, I'm going to translate you. Okay, so I'm going to share with you my itinerary as per the company. So we are going to start from Dubai frame. Next we are going to show you the drive through Al Bastaki area. After that we are going to show you the old Dubai Al Bastaki area. You people can see some of old houses which were related from our Dubai king family. They was living in 1971 in this building. So we have photo stop almost. After that again we are going to join our bus, then drive through. You people can see the Dubai museums, and then we are going to get boat ride. So I'm going to book for you the boat. Inside the boat maximum 20 guests can sit. So we are total including me 20. So I'm going to book for you the people's one boat. Then through boat from Bar Dubai Abra to Dera Dubai, we all of you can go there. Then you people can see after that Spice Bazaar. There is two type of bazaar: gold souk, gold market, and the first step Spice Bazaar. So inside the gold market also we are going to show you the world biggest gold ring. So we have around like 30 to 40 minutes stop there. Okay, so because of that bazaar was open in 1950. 1950, that is the oldest bazaar of Dubai. So once we will complete from there, then again we will join our bus. Then next you people can see drive through Dubai first building, Dubai World Trade Center, and then we have photo stop front of the Museum of the Future. Okay, Museum of the Future also we are going to show you but please, because we don't have ticket also and we have only photo stop. Museum of the Future tickets nobody can get easily also, because you have to book 1 week before also. Because of on tour we are not going inside any tourist attractions. Because of Museum of the Future also we need minimum 3 hours if it is you are going to visit inside. Then we have photo stop. After that drive through, you people can see the Sheikh Zayed Road, world tallest building Burj Khalifa, and then we have lunch at the inside the Oasis Mall. Once we will complete from there the Oasis Mall, I'm going to show you the Al Farouk Umar bin Al Khattab Mosque. What time will we reach Burj Khalifa? Sorry? Burj Khalifa. तो हमारे दुबई फ्रेम अभी दिखाते हैं एक्सपीरियंस रहता है, जिसमें हम ऊपर जा रहे हैं।
एक्सपीरियंस है? अरु, हाउ द एक्सपीरियंस? अब इस तरफ देख तो ले। What a view, यार! Amazing. It's scary for him, but then it's actually beautiful. Very, very, very beautiful. So ये था दुबई फ्रेम, ये हम टॉप पे आए थे। इसकी टिकट्स आपको अलग से लेनी पड़ती है। जो आपका दुबई का टूर होता है उसमें सिर्फ वो घुमाते हैं, उसके अलावा आपकी जो भी अंदर जो एंट्रीज़ होती हैं वो आपको खुद पे करना पड़ता है। और वो जो आपने क्लिप देखी उसमें राणा थोड़े परेशान होते हैं क्योंकि उनको थोड़ी हाइट से प्रॉब्लम है, स्कैरी रहता है वो। ये जो हम वॉक कर रहे हैं, ये मिरर था जिस पे हम वॉक कर रहे हैं, उन्होंने इस पे भी वॉक नहीं किया था, उनको बहुत डर लगता है। सो ये टॉप का ही है, तो एक तरफ आपको ओल्ड दुबई दिखता है, एक तरफ आपको न्यू दुबई दिखता है, इसीलिए इसको दुबई फ्रेम बोला जाता है। सो आप जब नीचे से देखोगे तो वो एक सिर्फ फ्रेम होगा और ऊपर उन्होंने प्रॉपर एक पाथ बनाया हुआ है, मिरर बनाया हुआ है जिस पे आप वॉक करते हो। तो ये सब था, ये देखिए आप सामने देख सकते हो, काफ़ी अच्छा व्यू था यहाँ से ओल्ड एंड न्यू का। और इसकी अगर आपको और रील्स देखनी है तो आप वो भी देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे dimple3081, वहाँ पे आपको सारी रील्स मिलेंगी। तो यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी हम लोग नीचे आए हैं, देखते हैं हमारी पिक्स कैसी ली है इन लोगों ने। So we can see and check, if you like it we can buy it, otherwise we can leave। कुछ इस तरीके से फ्रेम्स मिलता है। उसके बाद हम गए थे मॉस्क में। ये यहाँ पर हमें बता रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पे वेलकम किया जाता था पहले अपने गेस्ट का। सो इन्होंने हमें यहाँ पे कॉफ़ी दी और फिर उसके बाद जो ये हमारे टूर गाइड थे, इन्होंने हमें उनकी हेल्प के थ्रू हमें वो दिया, खजूर दिया। ज़्यादा देर हम वहाँ नहीं रुके। नेक्स्ट हमारा जो लोकेशन था वो था मीना बाज़ार, गोल्ड सूक, स्पाइस सूक। और तो यहाँ पे इन्होंने हमें उतारा था। यहाँ से हम बोट के थ्रू दूसरी तरफ गए थे, जो मतलब जिस तरफ गोल्ड सूक था तो वहाँ गए थे। काफ़ी अच्छा व्यू था, यहाँ पे भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था तो ऑलमोस्ट आई थिंक 5-6 हम लोग आए हैं। अच्छा था। तो हम उसके बाद फिर यहाँ पर आए थे जो कि था डेरा ओल्ड सूक। जो हमारे टूर था वो हमने रायना से बुक किया था एंड वाज अ गुड एक्सपीरियंस विद देम। बाकी अगर आप लोगों को किसी को नंबर्स चाहिए हो तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर आप डीएम भी कर सकते हो मुझे, मतलब मैसेज यहाँ पर भी कर सकते हो या आप डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। आईडी है dimple3081। यहाँ पे हमें समझा रहे थे कि आगे कैसे फॉलो करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। और उसके बाद हम गए शॉप्स पे जहाँ पे स्पाइसेस वगैरह थे। So you'll get pashmina, spices and other things here. And then now we are going to the Dubai Gold Souk because he is going to show us the world's biggest ring. So let's see which one is this. तो ये है दुनिया की सबसे बड़ी रिंग जिसका नाम गिनीज बुक में भी है, उन्होंने सर्टिफिकेट भी लगाया हुआ है वहाँ पे। तो ये वो रिंग है। एंड जो लोग मुझे डीएम कर रहे हैं या जो मुझे जानते हैं वो कॉल कर रहे हैं, तो कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं है इंडिया में या वहाँ पे। ऑब्वियसली क्वालिटी का डिफरेंस है। अगर आप गोल्ड की प्योरिटी की बात करें तो दुबई इज़ नंबर 1, सेकेंड इज़ मलेशिया। सो ये है वर्ल्ड का 7 स्टार होटल। जो ऊपर आपको दिख रहा है वो हेलीपैड के लिए, वहाँ पे लोग आते हैं और वहीं से नीचे आके फिर चेक इन करते हैं। सो उसके बाद फिर हम आए थे मोनो रेल को एक्सप्लोर करने के लिए और यहाँ से हमने पाम आइलैंड देखा था जो कि मैन मेड है, मनुष्य का बनाया हुआ है और बहुत ही सुंदर था। और उसी के पास वर्ल्ड्स बिगेस्ट वाटर पार्क है
जिसमें हम नेक्स्ट डे गए थे, बिकॉज ऑब्वियसली आप जो टूर पे होते हैं तो आप अंदर ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ एक नॉर्मल विज़िट था। ये देखिए यहाँ से भी आपको वो 7 स्टार होटल दिख रहा है। एक तरफ मैं आपको अभी दिखाऊंगी जूम करके, अगर दिखा होगा तो, अगर मैंने शूट कर पाई होंगी तो दुबई फ्रेम भी दिख रहा था यहाँ से। बहुत ही प्यारी रेल थी ये, मतलब लगा लीजिए आप सिर्फ एक पिलर्स पे चलती है ये। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। This is a monorail. Nice. So, इसके बाद हम आगे गए और ये सब जो आप देख रहे हो, ये सारा का सारा जो वहाँ के किंग्स हैं, जो यूएई सिटीजन्स हैं, उनके हाउसेस हैं। ये बहुत ही प्यारे बने हुए थे, बहुत ही यूनिक थे। इतनी ग्रीनरी है वहाँ पर, इतनी ग्रीनरी है, मुझे समझ नहीं आ रहा। डेजर्ट में इतनी ग्रीनरी, बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है उस कंट्री ने, और काफ़ी अच्छा था। ये देखिए, मैंने कोशिश की है कि मैं ज़्यादातर चीज़ें कैप्चर कर पाऊँ, बट ऑब्वियस सो ये जितना भी आप क्लिप्स देख रहे हो सारे हमने मोनो ट्रेन से ही लिए थे। कुछ प्रॉपर्ली शूट हुए हैं, कुछ नहीं हो पाए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना हिलती है मोनो ट्रेन एज़ कम्पेयर टू मेट्रो। मेट्रो में इतना ज़्यादा टर्बुलेंस नहीं है, बट इसमें है, क्योंकि ये सिर्फ मतलब ये लगा लीजिए सिर्फ इतनी ही जगह होती है कि 2 टायर वहाँ पर मूव कर रहे हैं। एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि वहाँ पे ड्राइवरलेस ट्रेन्स होती हैं, मतलब वो एआई के थ्रू ही चल रही हैं। वहाँ पे कोई ड्राइवर नहीं है जो उसको चला रहा है, तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। तो ये जो हमने शूट किया है, हम बिल्कुल सबसे आगे खड़े हुए हैं इस टाइम पे, जिस तरफ ट्रेन जा रही है उसी में सबसे आगे खड़े होकर हम इसको शूट कर रहे हैं। अभी मैंने आगे भी कुछ क्लिप्स डाली हैं, वो आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये प्रॉपर वही है जो आपको आगे मेरे वाटर पार्क वाले व्लॉग्स में दिखेगा। यहीं से एंट्री होती है, और वो जो सामने आपको ब्राउन ब्राउन दिख रहा था वो वहाँ पे स्लाइड्स वगैरह हैं। काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, मैं बार बार ये चीज़ बोलूँगी। एंड सेफ्टी तो मतलब क्या ही बोलूँ, फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था, बट देन बहुत ही सेफ़, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। सो प्लीज़ देख के सिर्फ मत जाइएगा, लाइक कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि हमें पता चले। एंड देन अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें पता चले कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है नहीं है, क्लिप्स ठीक रिकॉर्ड हुई हैं नहीं हुई हैं। थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, बिकॉज़ जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो एक तो आप एक्सप्लोर करना चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा, प्लस कभी आप थक जाते हो, क्योंकि वैसे तो आप बहुत मतलब ज़्यादातर हमने या तो कैब्स या मेट्रोज़ या बसेस, हमने सब कुछ यूज़ किया था वहाँ पे, लेकिन आप थक जाते हो। देखिए, मैंने पहले आपको बोला कि ड्राइवरलेस हैं, आप ये देख सकते हो, ये बिल्कुल आगे खड़े हो गए, जहाँ पे ड्राइवर्स होते हैं वहाँ खड़े हो गए हमने इसको शूट किया है। बहुत ही प्यारा व्यू था, बहुत ही प्यारा। सो ये जो मेरा बीच है, यहाँ पे होटल अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे रूम ले सकते हैं, और आपको जो पूल है, मतलब जो बीच है, वो आपको प्राइवेट बीच मिलेगा। इन्होंने प्रॉपर उसी के लिए वहाँ पर प्रॉपर मतलब अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। काफ़ी अच्छा था ये भी। इसके बाद हम गए ओल्ड दुबई देखने, जिसमें कि मैंने वॉइस ओवर नहीं किया है, जो हमारे टूर गाइड थे वही सब कुछ बता रहे हैं। which one was rebuilt in 2018. I'll see it for Dubai. पुरानी दुबई है, You can see का the reconstruction. old model buildings. These are of old model, okay? So later I'm going to show you the original old buildings. So these buildings now converted to the restaurants, bazaars. Mostly we have Indian restaurants and Arabic especially.
shopping. And inside these old building we have one of the famous Starbucks coffee also and old mosque also. So now you people can get idea about Arab peoples, how they was living, how was the houses, how they was surviving in 1971. And that time what they was doing the business, what was the source of income. They was fishing, pearl hunting and deep water, and they was selling, buying animals. जी जी, other side, Al Bastakia. We are going one stop. We have photos. सो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसके बाद फिर हम गए थे स्पाइस सूप में। ये देखिए कुछ जितने भी चीज़ें ये वहाँ लोग पे explain स्पाइसेस कर थे रहे वो उन्होंने बताए, गरम मसाला और कुछ चिकन मसाला, बिरयानी एंड ऑल। सो जिसको जो बाय करना है आप कर सकते हो। प्लस इन लोगों ने इसके बाद फिर पश्मीना शॉल्स थे वहाँ पर और कैमल वूल के शॉल्स थे, वो काफ़ी सॉफ्ट थे और काफ़ी अच्छे थे। तो ये बता दूं कि जो आपके नॉर्मल शॉल्स हैं जो ये लोग श्रीनगर से या कश्मीर से जो ये लोग मतलब सेल करते हैं, वो फिर भी थोड़े चीपर हैं। लेकिन अगर आप कैमल वूल लेते हैं तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। और इनके जो स्पाइसेस थे ना, जैसे मैंने अभी उसको स्मेल भी किया तो बहुत स्ट्रॉन्ग था उसका स्मेल ना, मतलब फ्रेगनेंस तो मैं नहीं बोल सकती बट हाँ उसका स्मेल बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग था। मतलब आप जब इनहेल कर रहे थे तो वो हिट कर रहा था। तो ये एक शॉप पे लेके गए थे जहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ें बताई। अगर आपको पसंद है तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। इसके बाद हम गए म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर। वो बाहर से ही फ़ोटो शूट कराते We हैं have बस। photo stop front of Museum of the Future. You people can see your left side like a egg shape, I shape, which one was open in 2022. It has 7 floors. You people, whenever you have ticket, please note that you can go maximum up to 5 floors. On 3rd floor there is the gallery. They are giving information. Beautiful buildings. It is a full of building country, I would say, with a unique structure, very beautifully designed, very beautifully managed. See, I'm trying my best to capture everything. The Dubai King, daughter, son, brothers, sisters. सो जल्दी मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ जिसमें और कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी जो हमने कैप्चर करी। और यहाँ पे जो हम गए थे वो मोस्टली फ़ोटो शूट वाले प्लेसेस होते हैं, आपको ज़्यादा टाइम ये अंदर जाने के लिए नहीं देते हैं। बी इट इज़ म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर, दुबई मॉल, एक्वेरियम, इस तरीके से। लेकिन हमने फिर जैसे हमने फ़र्स्ट डे ये किया था, उसके बाद फिर हमने एक एक दिन हर चीज़ पे डिवोट किया ताकि हम हर एक चीज़ को अच्छे से देख सकें। तो म्यूज़ियम ऑफ, जैसे हम दुबई फ्रेम गए तो हम इनके साथ गए, उसके बाद हम इंडिविजुअल गए, अपनी टिकट बाय करी हुई थी हमने, जो इसमें हमने देखा। इसके बाद फिर मैं आपको बटरफ्लाई गार्डन का बहुत जल्दी दिखाऊंगी। प्लस ये जो आपने बाहर वो देखा है फ्यूचर ऑफ द म्यूज़ियम, उसके अंदर का भी पूरा वो दिखाऊंगी कि क्या हमारा एक्सपीरियंस रहा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी मुझे और डालने हैं व्लॉग, बट थोड़े डिले चल रहे हैं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। जल्दी मिलती हूँ एक नई व्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय।